آج ہم مسیح کے ٹیبل کے یعنی آج اس کے دسترخوان کے مہمان ہیں. سب کہیں آمین. یو آر گیسٹ, جیزس از ہوسٹ. ہم مہمان ہیں, یسوع میزبان ہے. کہیں ہم مہمان ہیں, میرا یسوع میزبان ہے. واو واو, آج ہم کیا ہے اور یسوع ہمارا, پریز دا لارڈ. آج ہم مہمان ہیں اور یسوع ہمارا میزبان ہے. سب مل کر کہیں آمین. ہاللیلویہ. میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں جو کہ آج ہماری مرکزی آیت ہے, یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 54. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. مل کر شاؤٹ کریں آمین. آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں the power of the holy bread and holy blood in a believer's life. یعنی ہم پاک بدن اور پاک خون کی قدرت کو ایماندار کی زندگی کے توسط سے سیکھیں گے. مل کر شاؤٹ کریں آمین. ہم نے ابھی پڑھا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. جو میرا گوشت نہیں کھاتا, جو میرا خون نہیں پیتا, اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. کیا آپ اس کے بدن کو کھائے بغیر, اس کے خون کو پیے بغیر, کیا آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں چرچ؟ یہ بائبل کہتی ہے جو ایک شرط ہے, جو ایک کنڈیشن ہے, جو خدا نے ایک آپ کے آگے شرط رکھ دی ہے کہ جو بھی whosoever, مرد ہے, عورت ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, امیر ہے, غریب ہے, جو کوئی بھی جو میرا گوشت کھاتا ہے یعنی مسیح کا بدن لیتا ہے اور جو میرا خون پیتا ہے یعنی جو کوئی بھی, اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ عارضی زندگی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. مل کر شاؤٹ کریں آمین. کتنی زندگیاں ہیں, کتنی زندگیاں ہیں؟ ایمانداروں کو کتنی زندگیاں ملنے جا رہی ہیں, لیکن غیر ایماندار صرف زمینی زندگی تک محدود ہی رہتے ہیں. میرے عزیزو, پاک عشاء ربانی خدا کی قدرت کے بغیر نہیں ہے. آپ کبھی بھی اس بات کی توقع نہیں لگا سکتے کہ جو میں نے بدن کھایا ہے, جو میں نے لہو پیا ہے, اس میں طاقت ہی نہیں ہے. میں ہرگز اس بات کی تائید نہیں کرتا ہوں. مسیح کا بدن, مسیح کا لہو طاقت کے بغیر نہیں ہے. آپ وائٹامن لیں گے, آپ توانا ہوں گے, قوت پائیں گے. اسی طرح روحانی پرسپیکٹو کے ساتھ تو آپ اگر مسیح کے بدن کی روٹی کو کھاتے ہیں, اگر آپ مسیح کے پیالے میں سے آپ پیتے ہیں تو آپ طاقت حاصل کرتے ہیں, روحانی قوت میں آ جاتے ہیں. مل کر شاؤٹ کریں آمین. پاک بدن اور پاک خون جو ہے یہ ایک ایماندار میں خدا کے فضل کا مقرر کردہ ذریعہ ہے. اس بدن کو کھانے سے, اس لہو کو
पीने से आप खुदा ने जो फजल इस दुनिया में दिया है, आप उस फजल के माताहत हो जाते हैं, उस फजल में चले जाते हैं। मिलकर शाउट करें आमीन। आपको पता ही नहीं चलता, आपके बच्चों की आदतें कलाम के मुताबिक ढल रही होती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आपके घर का सुकून जो है बरकरार रहता है, आपको पता ही नहीं चलता, आपके बुजुर्गों की सेहत बरकरार ही रहती है, आपको पता ही नहीं चलता। बेशक दुनिया में अनगिनत बीमारियां हैं, आपके बदन में कोई बीमारी ही नहीं रहती है। मिलकर शाउट करेंगे आमीन जी। पाक इशा रुबानी के जरिए खुदा हमारे ईमान को भी मजबूत करता है। हालेलुया। आप जब मसीह के बदन की रोटी खाते हैं, जब आप मसीह के लहू के प्याले में से आप चर्च पीते हैं, आपका ईमान मजबूत हो जाता है, आपका ईमान स्ट्रांग हो जाता है, आपका ईमान ताकतवर हो जाता है। मिलकर शाउट करें आमीन। हमारे ये ज़मीर को भी साफ करता है, हमारे अंदर का जो इंसान है उसे भी प्योरीफाई करता है। ये सिर्फ हमें हेल्दी नहीं बनाता, ये सिर्फ हमें जाज़बे नजर ही नहीं बनाता, ये सिर्फ हमारी उम्र को ही नहीं बढ़ाता, हमारे अंदर का जो इंसान है, जो हमारा इनर सेल्फ है, जो हमारा ज़मीर है, जो हमारे अंदर की बातें हैं, जो हमारी हिडन सोच होती है, छुपे राज जो होते हैं, वो उन्हें भी मेरे अजीजों प्योरीफाई करता है, पाक और साफ बनाता है। मिलकर शाउट करें आमीन। ये खुदा के साथ दोबारा अहद में जुड़ जाना है। हालेलुया। हम खुदा के साथ बार बार मसीह के बदन की रोटी को खाकर, मसीह के लहू के प्याले में से पीकर बार बार खुदा के साथ अहदो पैमान करते हैं, बार बार खुदा के साथ अपनी दोस्ती का इजहार करते हैं। मिलकर शाउट करेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैं पहली बात आज आपको सिखाना चाहता हूं कि the power of the holy bread and the holy blood in believer's life, यानी पाक बदन जो है और पाक खून जो है, ये कैसे एक ईमानदार की जिंदगी में किरदार अदा करता है, उसकी पहली जो बात आज सुबह में मैं आपको सिखाने की जसारत करता हूं, वो पहली बात जो है, the holy bread gives life, स्ट्रेंथ एंड हीलिंग। पाक बदन जो है ये हमें जिंदगी देता है, हमें कुव्वत देता है और हमारी जिंदगी में शिफा लाता है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रोटी को खाने से और इस प्याले को पीने से, आज मैं इस रोटी की बात करने जा रहा हूं कि ये रोटी जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जो मैं खुदा के जिंदा कलाम में से आपको सिखा रहा हूं, वो ये है कि ये बदन जो है, दिस इज हिज ब्रेड, ये मसीह का बदन है। ये क्या है जी? ये क्या है जी? ये मसीह का बदन है। और यहां पर हमने देखा है कि मसीह का बदन जो है ये हमें जिंदगी देता है, हमें कुव्वत देता है और हमें शिफा देता है। हालेलुया। पूरे बदन की बीमारियों का इलाज मेरे आका, मेरे खुदावंद के बदन की रोटी खाने से है। हालेलुया। जब हम इस बदन की रोटी को खाते हैं तो मेरे अजीजों हमें जिंदगी मिलती है, हमें कुव्वत मिलती है और हमें शिफा मिलती है। मिलकर शाउट करेंगे आमीन। यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब की 35वीं आयत, यूहन्ना की अंजील आप निकालें, उसका 6 बाब और उसकी 35वीं आयत में यीशु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, किन से कहा जी? चर्च मेरे साथ साथ रहें। यीशु ने उनसे कहा, किन से कहा? किन से कहा? जिन्हें टेबल पर बुलाया है। आज किन से कह रहा है यीशु? आज मुझसे कह रहा है, आज आपसे कह रहा है। मिलकर शाउट करें आमीन। यीशु ने मुझसे कहा, कहें, यीशु ने मुझसे कहा, वो मुझसे कह रहा है।
کہ जिंदगी की रोटी, वाह, जिंदगी की रोटी कौन है? जिंदगी की रोटी यीशु ने कहा मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और मुझ पर ईमान लाए, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। मिलकर शाउट करें आमीन। जो मसीह के बदन की रोटी को खाता है, जो मसीह के लहू के प्याले में से पीता है, वो कभी भी रूहानी तौर पर भूखा और प्यासा ना होगा। हालेलुया। यानी एक के बदन के तोड़ने की इस बात की जमानत है कि जिस तरह हम जिस्मानी रोटी तोड़ते हैं, जैसे ये एक तो जिस्म की रोटी है जो हम सिंबलाइज कर रहे हैं कि ये मसीह का बदन है, हमने इसको पीसेस में किया है। इसी तरह मसीह ने अपने बदन को मुख्तलिफ पीसेस में किया है। जैसे हम रोज एक रोटी जो है वो तोड़कर उसे नवाला बनाकर अपने मुंह में लेकर खाते हैं, इसी तरह रूहानी रोटी जो है और वो जो हम नवाले बनाकर खाते हैं तो उससे हमारे बदन को ताकत मिलती है और वो हमारे बदन की हिफाजत करती है, हमें कमजोर होने से बचाती है, हमें लागर होने से बचाती है, हमें बीमार होने से बचाती है। इसी तरह एक ने जब अपने बदन के हिस्से किए और उन हिस्सों को हमें पेश किया ताकि हम उस बदन को खाएं, तो मेरे अजीजों वो हमें बीमारियों से, परेशानियों से और रूहानी जितनी भी हमारी कशमकश है उससे बचने के लिए मेरे अजीजों वो हमारे लिए परफेक्ट मेडिसिन है। मिलकर शाउट करें आमीन। मत्ती रसूल की अंजील उसके 4 बाब की 4 आयत में लिखा है कि उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है, क्या है, हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मिलकर शाउट करें आमीन। मेरे अजीजों, आज हम मसीह के बदन की रोटी के खाने को पर्सनली हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। हम जाती तौर पर इसका तजर्बा करने जा रहे हैं। आज मेरा आज एक पर्सनल तजर्बा होगा मसीह के बदन की रोटी को खाने का, आपका आज एक पर्सनल तजर्बा होगा, जाती तजर्बा होगा मसीह के बदन की रोटी को खाने को। और आप देखें, मैं ईमान से कहने जा रहा हूं, जब आज आप मसीह के बदन की रोटी को खाएंगे, जब आप मसीह के बदन के नवाला को आप अपने बदन के अंदर लेंगे, तो मेरे अजीजों आपका बदन बहाल हो जाएगा। हालेलुया। चर्च बीमारी का हो जाना आम सी बात है। मैं बीमारियों को एक बहुत बिग इशू नहीं समझता। दिस इज द माइनर इशू। एक छोटे से काम है। अगर यीशु मसीह मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है तो क्या शुगर जैसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता? बाज़ औक़ात यीशु या तो आपके बदन से मुकम्मल तौर पर बीमारी को ही निकाल देते हैं या बीमारी को हुक्म दे देते हैं कि अगर नहीं भी छोड़ना, क्योंकि कोई कॉज तो इंसान के इस जाने की एक रीजन बनती है, ठीक है, नहीं जाना लेकिन मेरे बंदा को आपने दुख और तकलीफ नहीं पहुंचाना, बीमारी को हुक्म जारी हो जाते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपकी बॉडी के अंदर जो जो बीमारियां हैं, जो जो परेशानियां हैं, जो जो उस बीमारी की उम्र 1 साल से लेकर जितनी मर्जी हो, जो मुझे नहीं पता दौरानिया कितना भी हो सकता है, कोई 10 साल का भी दौरानिया हो सकता है, कोई 8 साल का दौरानिया भी हो सकता है, कोई 3 साल का दौरानिया भी हो सकता है, दौरानिया कितना भी है, लेकिन मैं आपको ईमान से कहना चाहता हूं कि अगर आज आप मसीह के बदन की रोटी खा रहे हैं, आज उस बीमारी के 10 साल और ठहर जाएंगे आपकी जिंदगी में। आप जितना जितना मसीह के बदन को खाते जाएंगे, आप जितना जितना मसीह के लहू को प्याले में से पीते जाएंगे, उतनी उतनी आपकी उम्र की म्याद जो है वो बढ़ती जाएगी। मिलकर शाउट करें आमीन जी, मिलकर शाउट करें आमीन। और कलाम में लिखा है, यशायाह 53 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। मार किसने खाधी? रोटी किसने तोड़ी? बदन किसने छलनी करवाया? पेश किसने किया? तो उसके मार खाने से शिफा हम सबको मिल गई। मिलकर शाउट करें आमीन। और पहली जो मैं आज आपको पहली बात सिखा रहा हूं, पाक बदन जो है ये एक तो जिंदगी देता है,
पाक बदन जो है ये कुव्वत भी देता है और पाक बदन जो है ये शिफा भी देता है। मिलकर शाउट करें आमीन। आप फ्यूचर की जो आपके बदन में इब्लीस ने प्लान किया हुआ ना, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, आने वाले सारे बीमारियां, आने वाले सारे कैंसर, आने वाली सारी परेशानियां जो बीमारी की सूरत में होंगी, इस बदन के खाने से वो यीशु के नाम में आज कैंसिल हो गई। मैं स्टॉप करता हूं उन्हें यीशु के नाम में, उन्हें रद्द करता हूं यीशु के नाम में, अपनी जिंदगी से और आप सबों की जिंदगी में। मिलकर शाउट करें आमीन। आप किसी हॉस्पिटल में ऐसा इलाज नहीं देखेंगे। आप हॉस्पिटल में उन बीमारियों का इलाज देखेंगे जो बीमारियां आपके बदनों के अंदर हैं। हम इस चर्च के अंदर खुदा की कुदरत से उन बीमारियों का भी इलाज करते हैं जिन्हें हाले तक नहीं आई हैं। हालेलुया। जिन्हें हाले तक नहीं भी आई हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शाउट करें आमीन। मौजूदा ਦਾ कर दें या मौजूदा ਨੂੰ ਤੇ सिर्फ हुक्म जारी करते हैं, रुक जाओ, रुक जाओ। और जो आने वाली होती हैं, जो अभी प्लान में होती हैं, मैंने फलां की जिंदगी में ये बीमारी में, उसकी बॉडी में मैंने ये बीमारी लेकर आनी है, उसकी बॉडी में ये लेकर आनी है, उसकी बॉडी में ये लेकर आनी है, हम उन बीमारियों को भी यीशु नाम में रोक देते हैं। हालेलुया। स्टॉप। हम हुक्म जारी करते हैं कि यीशु के नाम में रुक जाओ। और सुनिएगा, उसके मार खाने से क्या हुआ जी? यीशु का जिस्म इस तरह टूटा था कि हमारी टूटी हुई जिंदगियां बहाल हो गई। हालेलुया। एक इतना टूट गया, हम टूटों को उसने जोड़ दिया। वाह। एक इतना छलनी हो गया, एक इतना पीस हो गया, यानी टुकड़े टुकड़े हो गया कि हम टुकड़े टुकड़े हुओं को उसने जोड़ दिया। मिलकर शाउट करें आमीन। चर्च, आज के दौर में इतने यूनाइट होकर बैठना, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस खुद गर्जी के दौर में, इस कंपटीशन के दौर में, इस नेगेटिव सोच रखने वाले दौर में आप एक साथ उसकी हुजूरी में, उसके कदमों में झुके हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बरकत है। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी बरकत है। दूसरी जो बात मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, ये हमने किसकी बात की है जी? कि बदन क्या करता है जी? बदन शिफा दिंदा, होर बदन जिंदगी दिंदा, बदन ताकत दिंदा। मिलके कहो आमीन जी। बदन के काम क्या है? अब मैं ये बदन के काम क्या है जी? अब मैं इससे क्या ले रहा हूं? पहले वही बात करें, मैं इससे क्या ले रहा हूं? शाबाश। और फिर ये दूसरे नंबर पर जब मैं इसको ले लूंगा, फिर क्या देगा? ताकत देगा। शाबाश। और इसके बाद अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी है, तो ये अंदर जाकर उससे क्या करेगा? क्या करेगा? फाइट करेगा। क्या करेगा? और जीतेगा कौन? ये बदन जो मैं खा रहा हूं। और हारेगा कौन? जो मेरे अंदर बीमारी होगी। मिलकर शाउट करें चर्च आमीन। दूसरी बात, द होली ब्लड गिव्स फॉरगिवनेस, क्लेंजिंग एंड विक्ट्री। पाक खून जो है, नंबर 1, ये हमें मुआफ करता है। क्या करता है जी? इसके पीने से हमारे गुनाहों की मुआफी हो जाती है। हाउ बिग? क्या आप पल्मानॉल पीने से कभी किसी को मुआफी हुई है? मैदे का सिरप पीना किसी को मुआफी हुई होवे? लेकिन आज सुबह मैं कहता हूं यीशु का खून पीने से हमें मुआफी मिलती है। हालेलुया। यीशु का खून क्या करता है? हमें मुआफ करता है। दूसरे नंबर पर यीशु का खून हमें साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है। ये मसीह का बदन करता है। चर्च, इसे लो, इसे पियो। मैं इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। मैं आपको जोर से कहता हूं, इस लहू को पीते रहें। आपकी भलाई होगी, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। आपके खिलाफ बने हुए मंसूबों को ये तोड़ता है। अबलीस हर एक दे खिलाफ है। जेड़ा इस चर्च दे अंदर है, ओदे खिलाफ अबलीस जरूर है, लेकिन ये अबलीस की मुखालफतों को तोड़ता है। मिलके शाउट करो आमीन जी। यीशु का लहू क्या करता है जी?
معاف کرتا ہے. جو آج یسوع کے قدموں میں انہیں معافی ہے. ہاللیلویا. پھر یسوع کا لہو معاف کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ صاف کرتا ہے, چنگی صفائی کر دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ فتح دلاتا ہے. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. یہ ہمیں ابلیس کے کاموں, ابلیس کی ساری ناپاک سوچوں, ابلیس کے تمام منصوبوں کے خلاف ہمیں یہ فتح دلاتا ہے. مل کر شاؤٹ کریں آمین. جی مل کر شاؤٹ کریں آمین. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے. ہم اگر ایک دوسرے کے عارضی طور پر مخالف ہو جاتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ابلیس بہکا رہا ہوتا ہے. یہ ساری سازش, یہ سارے گندے منصوبے, یہ سارے گھنونے خیالات, یہ ابلیس ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. آپ نے بچنا ہے چرچ, پلیز. اس کو پینے سے آج پیوریفائی ہونا ہے. آپ نے اس کو پینے سے آج آپ نے فتح یاب ہونا ہے. آپ نے ابلیس کو شٹ اپ کہنا ہے. شٹ اپ ابلیس, تیری اتنی مجال, تیری اتنی ہمت کہ تو میرے خیالات کو بہکا رہا ہے, تو میری سوچوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے, تو مجھے بیک سلائیڈ کرنے کی کوشش میں ہے. شٹ اپ, شٹ اپ. اسے شٹ اپ کال دیں پلیز, اور یہ بدن آپ کو فتح یاب ہونے دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. متی رسول کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. چند ایک باتیں جو میں آپ کو لہو کی بتانا چاہتا ہوں کہ پاک خون کو جب آج آپ پئیں گے تو it forgives sins. اس سے ہمارے گناہوں کی بھی ہمیں کیا ہو جائے گی جی, معافی ہو جائے گی. اگر آپ نے گزشتہ ہفتوں میں کوئی برائب لیا ہو, کوئی رشوت لی ہوئی ہو, کوئی گالی بھی دی ہوئی ہو, کسی کو مارا کوٹا بھی گیا ہو, کسی سے چیٹ بھی کیا ہو, کسی سے کوئی اور غلط کام بھی کیا ہوگا, تو میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے, چونکہ کلام میں بار بار معافی ہے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں. کلام میں لکھا ہے, لیکن یوحنا کا عام خط اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے یسوع مسیح, تو ہماری آپس میں کیا ہے, شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. پاک خون جو ہے ہمارے اندر کے انسان کو بھی پاک اور صاف کرتا ہے. کئی لوگوں کی کچھ ایسی گنونی حرکتیں ہوتی ہیں جن کو صرف وہی جانتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے, اس کا اسپاؤس بھی نہیں جان رہا ہوتا. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آج ان کی بھی معافی ہو جائے گی, آج وہ بھی پاک اور صاف کر دیے جائیں گے. سن لو چرچ, کتنا رحیم خدا ہے, کتنا رحم دل خدا ہے. سارا کچھ جانتے ہوئے بھی آج آپ کو پھر معاف کر رہا ہے. کیسا خدا ہے؟ یعنی گیس کرو نا, گیس کرو. میں اگر گیس کروں تو مجھے تو, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ بگ گاڈ از, کتنا بڑا خدا ہے. میں اتنا برا ہوں, میں اتنا کمزور ہوں, لیکن وہ معاف کر رہا ہے اور بار بار معاف کر رہا ہے. ہی از اے پریشیس گاڈ, وہ قیمتی خدا ہے. مل کر شاؤٹ کریں آمین.